embracing. Amen. Today we have great preacher. I would like to request Reverend Nikhil sir, please come forward and take your time. I request Reverend David to come as help us in translation. Start. Praise the Lord. Hallelujah. I thank God for this beautiful opportunity that God has given to all of us to listen from His word. परमेश्वर का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर दिया है परमेश्वर के वचन में से हम सब सुन सकें. And I'm also thankful to our dear senior pastor and president Dr. Matthew K. Thomas for giving me this opportunity to minister alongside him. और परमेश्वर के अभिषेक दास को मैं सीनियर पास्टर और हमारे प्रधानाचार्य डॉक्टर मैथ्यू के थॉमस जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझे उनके साथ सेवकाई करने के लिए मौका दिया है. And all dear faculties, students, I thank all of you for continuously you are praying for me and our ministry. I am grateful to all of you. और यहाँ पे जितने उपस्थित शिक्षकों को और छात्रों को, विद्यार्थियों को, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप हमारे लिए और हमारी सेवकाई के लिए प्रार्थना निरंतर करते हैं. And finally, I greet you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. और उसी के साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अति सामर्थ्य नाम से आप सबको मैं स्वागत जताता हूँ. Shall we all turn our Bible to a scripture portion that was read? Ecclesiastes chapter 3. जो हमारे बीच में जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया है उसके ओर हम ध्यान केंद्रित करेंगे. सपोपदेशक अध्याय 3. And hope he is able to fix it. Yeah, at least on one screen it is visible. कम से कम एक स्क्रीन में आप सब देख पाते हैं. And as older students, they know that we have been looking into this book for some times now. और यहाँ पे जो विद्यार्थी पहले से पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं कि इस पुस्तक में से हम पहले से ही बातचीत कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं. At least 3 messages we have heard in the semester that is gone by. और जो पिछले सेमेस्टर में कम से कम 3 अध्याय या 3 मुख्य संदेश हमने इसके बारे में सुना है. One we heard in church and 2 messages from this chapel. और एक संदेश हमने कलीसिया में या चर्च में सुना था और बाकी 2 यहाँ पे हमने सुना है. And while all of those sermons were given, I did give pretty much enough of the background of this book. और जब ये हम संदेश सुन रहे थे तो मैंने काफ़ी पृष्ठभूमि इसके ऊपर आप सबको दिया है. Especially chapter 12 and chapter 11. और खास करके अध्याय 11 और 12. So the context is same, but I have entitled today's message that I would like to share with you all is God's purposeful creation. God's purposeful creation. और आज का जो शीर्षक है आप सबको मैं देना चाहूँगा परमेश्वर के उद्देश्य के द्वारा बनाए गए सृष्टि. God's purposeful creation. परमेश्वर के उद्देश्य पूर्वक सृष्टि. And the proposition I would like to talk in this morning. और उसके साथ साथ मैं आपको आज सुबह के संदेश में देना चाहूँगा. Utilize the present or utilize this time because unacceptable is inevitable yet eternity is real. Utilize the time. और समय का सदुपयोग करें. Because unacceptable is inevitable. Unacceptable अस्वीकृत होना लाजमी है. अस्वीकृत होना लाजमी है. The things you do not want should happen or things you have not expected will happen. और आप जिन चीज़ों को नहीं चाहते हैं या आपने कभी सोचा नहीं है वो चीज़ें हमारे साथ होती हैं. Yet eternity is real. परंतु अनंत जीवन सच्चा है. And now throughout my message this proposition will be proven fact as we go into the points. और इस विषय में जब हम संबोधित करते हैं तो आप सबको इस बात पे मैं इस बात को साबित करूंगा. And in the context as I have shared a lot, but at least just to be fair with the message, the context is very much similar and you all know it because this entire book, particularly chapter 1, 2 and 3, we see Solomon's search for meaning in life. और
कॉन्टेक्स्ट को समझाने के लिए या इस संदेश के साथ कॉन्टेक्स्ट को आपके सामने रखने के लिए यहाँ पे तीसरा अध्याय में हम देखते हैं कि सोलोमन जो है वो बुद्धि की या जीवन की जो Meaning of life. जीवन की जो अर्थ है उसको उसकी खोज में लगा है. Chapter 1, 2 and 3, we see by different means or different options he is trying to find the true meaning of life. और अध्याय 1, 2 और 3 अध्याय में हम देखते हैं कि कई तरीकों से या कई अलग अलग चीजों से वो जीवन की अर्थ को समझने की खोज में रहता है. He tries it through wisdom. और वो इस चीज को खोजने में ज्ञान को इस्तेमाल करता है. It's howling here. He tries to get the meaning of life through indulging into pleasures. और अपनी जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार भी समझने की कोशिश करता है. He tries to find the meaning of life in the life of fool and also in the life of wise. और इस जीवन की जो अर्थ है उसको एक बुद्धिमानी व्यक्ति में और एक मूर्ख व्यक्ति में भी खोज करता है. He tries to find the meaning of life through work. और एक कार्य करने की जो क्षमता है उसमें भी वो खोज करता है. He tries to work in different ways, like he says in other places, I have put for myself a vineyard, or through the cultivation and harvesting, and he finds it meaningless. और वो कई बार इस संदर्भ को यूज करता है कि मैंने एक दाख लता को बनाया है, उसके ऊपर कार्य किया है, लेकिन उसको भी मैंने व्यर्थ पाया है. And now he comes to chapter 3 and likes to talk about the meaninglessness of life in the course of events of his life. और यहाँ पे तीसरा अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जो जीवन की जो संघर्ष है या जीवन का जो अर्थ है वो जीवन की कठिनाइयों में से जाते हुए भी व्यर्थ पाया जाता है. Meaninglessness of life in the course of life events. और जीवन की जो घटनाएं हैं उसके दौरान जीवन की मीनिंगलेस, अर्थहीन. And therefore you see all of this, the key word in this book is the word Hebel, which means the literal meaning would be smoke, but the translated meaning in English is meaninglessness, व्यर्थ. और इसकी जो असली की वर्ड है या मुख्य शब्द है वो है हेबेल, जिसका अर्थ हो सकता है धुआं, लेकिन जब उसको ट्रांसलेट किया जाता है, अनुवाद किया जाता है, तो उसका अर्थ आता है व्यर्थ. So smoke, smoke is like something you try to catch it, but you feel like you have gotten into it, but the moment you try to open and see, there is no smoke. और धुआं एक ऐसी चीज है, आप जब उसमें शामिल हो जाते हैं या आप उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, आपको लगता है कि आपने उसको पकड़ रखा है, लेकिन जब आप अपने हाथों को खोलते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है. It seems like something is there and I can got hold on to, but the moment you realize it is out of your hand. और आपको ये चिंता या आप ये सोचते हैं कि आपने कुछ चीजों को पकड़ा है, लेकिन जब आप उसकी असलियत में जाते हैं तो आपको पता चलता है आपके हाथ में कुछ नहीं है. So whether be it a wisdom, whether be it a pleasures of life, be it the work ethics, be it the life of fool and wise, and the course of or the events of the course of life, all of this seems to be meaningless in the perspective of Solomon. और चाहे वो बात बुद्धि की हो, ज्ञान की हो, जीवन की अभिलाषाओं की हो, या बुद्धि और मूर्ख की बातें हो, कार्य की हो, जीवन की घटनाओं को हो, ये सारी चीजें सोलोमन की जीवन या सोलोमन की दृष्टि में बिना कोई अर्थ के है. And looking at all of these things, so many people would like to label Paul as a pessimistic man. निराशावादी. इन चीजों को देखते हुए या मद्देनजर में रखते हुए कई लोग ये कह सकते हैं कि पौलुस Solomon एक seems like a pessimistic man, निराशावादी इंसान है या पुरुष है. Because he is so negative towards life, right? He talks about the things in very negative term, very passive, and looks very dry and very rough. और वो बहुत ही नकारात्मक चीजों को सामने लेकर आता है, जैसे कहता है जीवन बहुत ही सूखी पड़ी है, और जीवन की जो असलियत को वो समझाने की कोशिश करता है. There is no joy, no happiness, suffering, pain, and the end is same. Accidents and tragedy is common to all. Looking at all of these things, Solomon explaining, people would like to label him as someone who is very pessimistic and hopeless. और इन सारे चीजों को जब वो कहता है कि जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यर्थ है, या जीवन में खुशी नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है, तो इन सारे चीजों को देखते हुए लोग सोलोमन को कह सकते हैं कि ये एक निराशावादी है. But I would like to label Paul not pessimist but realist.
और मैं सुलेमान को कहना चाहता हूं कि वो realist, वास्तविकतावादी. वास्तविकता पर निर्धारित पुरुष है. He is not someone who is trying to, create a false image of future or reality, but he looks at the life and writes what he sees. और सोलोमन एक ऐसा पुरुष नहीं है कि भविष्य की एक चित्र को वो काल्पनिक रीति से आप सबके सामने रखे, लेकिन वो जीवन की असलियत को देखकर चीजों को संभवित करता है. He went out of his home and tried everything and looked into all with a very closer view and wrote it about it in the scriptures. और वो अपने घर से निकलकर जीवन में या दुनिया में जाकर सारी चीजों को देखने के बाद बहुत ही अच्छी तरीके से वो खोजने के बाद अपने पुस्तक में उसकी असलियत को लिखता है. This is not coming to us from a young lad who is just very pretty young and do not have experience of life and do not have wisdom to discuss about all of these things, but Solomon was one of the most experienced in all of these points that I talked to you, and he was the wisest man of all. और ये एक जवान लड़के के जीवन से नहीं आता है. ये पुस्तक ऐसा कोई जवान लड़का नहीं लिखता है जो अनुभव नहीं पाता है या जीवन की अनुभव को नहीं पाता है, लेकिन सोलोमन जो जिसका वर्णन हम देखते हैं कि उसके जैसा ज्ञानी ना पहले कोई था ना उसके बाद कोई है, ऐसा एक अनुभवी व्यक्ति के जीवन के द्वारा लिखा गया पुस्तक में से हम देखते हैं. And all of these things makes us understand that in our life also such things may happen. We may go all through all of this, but what makes Solomon hopeful or realist, I should say, is he does not end with his conclusion excluding God, but he says that fear of God is the key and the bottom line of all of this. और इन सारे चीजों के पश्चात अगर हम सोलोमन के जीवन की असलियत को देखते हैं, वो अपनी समाप्ति में परमेश्वर को अलग रखते हुए नहीं देखता है, लेकिन परमेश्वर के बारे में कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है. And same narrative of the story we would also see in the forthcoming chapter, or the one that we are going to discuss today. और इसके पश्चात जो अध्याय आता है उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसी कहानी को या उसी रीति से उसको समझाने की कोशिश करता है. So shall we delve into the chapter and try to understand what is Solomon trying to help us understand this morning? तो आइए इस अध्याय में अपने आप को शामिल करें ताकि सोलोमन जो हमसे जो कहना चाहता है उसको अच्छे तरीके से समझ सकें. He begins to talk about it. It's one of the very beautiful poems which is very very popular, particularly the verse number 11 of it. But if you only read the verse number 11, you would miss the whole point of Solomon. और ये बहुत ही अच्छा तरीके से समझाया है, एक गीत जैसा समझाता है, लेकिन अगर आप 11 वचन को ना पढ़ें तो आप which is most popular, जो the verse 11, बहुत ही वाकिफ है, हम सब उसके बारे में हम सब जानते हैं, अगर उसको हम छोड़ देंगे तो उसकी जो मूल भाषा है या मूल चित्र है उसको हम नहीं समझ पाएंगे. So he begins with the contrasting realities of life. और ये जीवन की जो असलियत है उसको तुलना में लेकर आकर हम सबको प्रकाशित करता है. Please read from verse number 2. दूसरा वचन से अगर आप पढ़ेंगे, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उजाड़ने का भी समय है. So in your English translation the words may differ, but he begins with the idea of birth and the idea of death. और आपके इंग्लिश अनुवाद में शायद शब्द की जो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये जो शुरुआत करता है वो जीवन और मृत्यु की तुलना से शुरुआत करता है. He says that everything that happens under the sky is what begins with the birth and ends with life, ends with death. और ये कहता है सोलोमन कि आकाश के नीचे जो कुछ भी होता है वो जन्म से शुरुआत होता है और मृत्यु से अंत होता है. And there is a time for all of this to happen in your life. और ये आपके जीवन में प्रत्येक काम का होने का एक अवसर है या समय है. And with the birth or the life and death, he goes on to talk about the time to sow and the time to reap. और उसके बाद वो बताता है कि बोने का भी एक समय है और बोए हुए को उजाड़ने का भी समय है. Then he goes on to talk about the time to kill and there is time to heal. और उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए कहता है घात करने का भी समय और चंगा करने का भी समय. There is time to demolish and there is time to rebuild. और कहता है ढा देने का भी समय है और बनाने का भी समय है. He says there is time of sorrow and there is time of joy. और कहता है रोने का भी समय है और हंसने का भी समय है. There is time to mourn and there is time to dance.
और छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। There is a time to select or gather, and there is time to throw it away. और पत्थर फेंकने का समय है और पत्थर बटोरने का भी समय है। He says there is time to, embrace, and there is time to confront. और गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है। There is time to search, and there is time to abandon. ढूंढने का समय और खो देने का भी समय है। There is time to keep, and there is time to discard. बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है। There is time to tear, and there is time to sew. फाड़ने का समय और सीने का भी समय। There is time to keep silence, and there is time to speak. चुप रहने का समय और बोलने का भी There समय is है। time to love, and there is time to hate. प्रेम करने का समय और बैर करने का भी And समय। finally, there is a time to wage war, and there is time to maintain peace. और आखिरी में कहता है लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। And he has seen this in the life of everybody. There is no human being excluded from the experience of life with this contrasting factors. और ये हर एक पुरुष के या हर एक मनुष्य के जीवन में पाया जाता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है कि जो असलियत को अपने आप से दूर रखे या इन तुलना किए गए चीजों से अपने आप को बचा सके। Today you may be in a place where things may look very comfortable, very easy, and you would like to stay in that course of life. और आपके जीवन की जो घटनाएं आपको बहुत ही सुविधादायक हो सकती हैं और आपके लिए बहुत आसान हो सकती है और आपको ये लग सकता है कि उसी समय में या उसी चीजों में हम लगे रहें। It may be very joyful, it may be very happy happening, it may be everything according to your wish, your plan, your will and your prayer. और चीजें आपकी इच्छा के अनुसार हो सकती हैं, जहां आपको आनंद होता है, आपको हर्ष होता है और आप जो इच्छा करते हैं उसके अनुसार आपको जीवन हो सकता है। But don't feel bad if Solomon wants to inform you there is a other side of the coin. लेकिन इस बात को सुनकर दुखी ना हो कि सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। There is death, और मृत्यु भी है, there is sorrow, दुख है, there is mourning, और छाती पीटने का समय है, there is time of distress, और दुख होने का समय है, there is time of something unacceptable to happen in our life. और ऐसे चीजों को जो हम कभी सोचते नहीं है वो चीजें हमारे जीवन में हो सकती हैं। And there are times that when you're more confident that you can do certain things and you are failure utterly and fail to achieve what you actually wanted to. और कई बार आपके ऊपर इतना आपके अंदर जो आत्मविश्वास होता है कि मैं भिन्न चीजों को या इस चीज को कर सकता हूं, लेकिन आप असफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं जब वो चीज आपके जीवन में नहीं होता है। And this may sound very rough and pessimistic, as I told you, that many theologians and many expositors would like to call Solomon, but he does not end the story there. और ये बातें सुनकर हमें बहुत ही निराशदायक बता सकते हैं, सोलोमन को भी बहुत ही निराशदायक बता सकते हैं, लेकिन ये जो कहानी है ये यहाँ समाप्त नहीं होती है। He goes on to give at least multiple lessons, but for time being I would like to keep 3 before you. और ये जब आगे बढ़ता है तो हमारे लिए बहुत ही चीजें सीखने को या सिखाने को देता है, लेकिन समय की समाप्ति के वजह से, समय की सीमितता के वजह से मैं सिर्फ 3 चीजों को देना चाहूंगा। 3 lessons I would like all of us to learn in the light of the unacceptable events in our life. और हमारे चीजों में जो हम सोचते नहीं है वो सारे चीजें जब हमारे जीवन में होते हैं उसको मद्देनजर में रखते हुए मैं 3 सीखों को आपके सामने रखना चाहता हूं। Because in the recent year there are a lot of things that we have been facing as Indians, or to say as the human being. और कहने का अर्थ ये है, अगर हम देखें तो इन दिनों में हमारे भारत में हम भारतीय होते हैं या हम इंसान होते हैं, हम बहुत से चीजों को आमना सामना करते हैं। For a couple of years we've been COVID stricken. और कुछ सालों से हम कोविड से प्रभावित हैं। Then now you see there is a war, violence going on in some of the states of our country. और हम देखते हैं कई राज्यों में, हमारे राज्यों में अभी युद्ध चल रहा है, अशांति का परिस्थिति है। And the natural catastrophe is already befallen many of the states of India. और हम देखते हैं जो बाढ़ आती है बहुत सारे राज्यों में अभी भी है। You are looking the economy of our country is keep depleting. और अगर हम आर्थिक स्थिति को देखे जाएं वो निरंतर गिरते जाता है। And a lot of news, when we open the paper or look into it, we feel very hopeless.
और जब हम प्रचार को सुनते हैं या न्यूज़ को देखते हैं तो इन सारे चीज़ों को सुनते हुए हम अपने आप को बहुत ही निराशदायक बना लेते हैं। But here is Solomon, something he wants to share with all of us. लेकिन आज सुलेमान जो है वो हम सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ को सिखाना चाहता है। Let me begin with verse number 11. Yeah, I would request Reverend David to read it. 11 वचन से हम शुरू करते हैं। इसमें लिखा है, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। Yes. फिर He didn't begin this verse without telling the semi-conclusion, not the full conclusion, but the half conclusion of the previous contrasting events. और ये जो तुलना करते हुए कुछ घटनाओं को बताता है उसकी पूरी समाप्ति नहीं लेकिन आधी समाप्ति को वो सामने रखता है। And what he says, please listen to verse number 9. और देखिए 9वां वचन में वो क्या कहता है, काम करने वालों को अपने परिश्रम में क्या लाभ होता है। So he says that what is the profit if all of these things are happening in our life and there is no hope, there is no God, there is nothing that we can hold unto. और इन सारे परिश्रम का काम या जो भी परिश्रम का काम आप करते हैं, इन सारे चीजों का लाभ क्या है जब आपके लिए आप परमेश्वर नहीं है, जीवन की सच्चाई नहीं है, तो ये सारे चीजों को करने का लाभ क्या है। So with a question mark he closes the course of events of one's life. और ये एक क्वेश्चन मार्क है, सवाल चिन्ह को रखते हुए एक व्यक्ति का जीवन को समाप्त में लेकर जाता है। And in verse 11 he says something very very powerful. लेकिन जब 11 वचन में आते हैं, 11 पंथ में आते हैं तो बहुत ही सामर्थ्यशाली बातें वो कहता है। He says that God has made everything beautiful in its time. परमेश्वर ने अपने समय में अपने अपने समय पर वो सुंदर होता है। Now I would like to apply this in two ways. और ये दो तरीकों से हमारे जीवन में मैं लागू करने के लिए मैं First, चाहता हूँ। in you as person, और पहला बात आपके एक व्यक्तिगत जीवन में, and then second, what is happening around you as events of your life. और दूसरी बात आपके चारों ओर जो घटनाएं होती हैं उसके प्रेरित में। Beauty is pretty abused in our time. और कई बार जो सुंदरता की जो विषय है कई बार उसको गलत तरीके से प्रकट किया जाता है। We have a bunch of people who actually believe that beauty is something which is fair. और हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि सुंदर होना यानी गोरा होना। And other day in the final year I think we were discussing about the skin lightening creams. और एक दिन या कुछ दिन पहले हम फाइनल ईयर के क्लास में सर डिस्कस कर रहे थे कि हमारी त्वचा को सुंदर या गोरा करने की क्रीम के बारे में। And how popular these creams are becoming with the big brands and making nobody fairer but only crippling them with a lot of scores of various kinds of skin diseases. और इसकी जो सच्चाई है अगर आप देखेंगे तो ये असलियत में जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है ये नहीं दिखाता, लेकिन जो क्रीम हम लगाते हैं उस क्रीम के द्वारा हमारा जो त्वचा की हानि होता है वो हमें बाद में पता चलता है, Leading even up to skin cancer. और ये सारी चीजें कई बार स्किन कैंसर में भी हमें आगे बढ़ाता है। So there is a cream very popular. I know everyone sitting here may have at least used once in their life, or maybe someone using it still in their life. Is fair and therefore lovely. और कई बार यहाँ पे उपस्थित कई जनों ने कम से कम जीवन में एक बार तो लगाया होगा या कई लोग अभी भी लगाते होंगे। फेयर इसीलिए लवली। If there is no fair, you are not lovely. और अगर आपके जीवन में गोरापन नहीं है तो आप प्यारे नहीं है, लवली नहीं है। Therefore it is sold and became the number one skin lightening cream in Asia. और इसीलिए एशिया महाखंड में देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा बिकाऊ फेयरनेस क्रीम है या त्वचा को गोरा करने की क्रीम है। Then there are people who believe particular sort or height of people are beautiful or handsome and others are not. और कई लोग ऐसे भी मानते हैं कि जो मनुष्य है उसकी लंबाई के आधारित पे वो सुंदर है और जो बाकी लोग हैं वो सुंदर नहीं है। Then particular body type people are beautiful and handsome and others are not. और कई लोग ये मानते हैं कि जो शरीर के तरीके होते हैं उसके जो साइज होता है उसके अनुसार देखा जाता है कि कुछ लोग सुंदर है कुछ लोग नहीं है। This kind of people just need to get out of their well and see actually what other culture and country people believe, quite opposite for the same.
और ऐसे लोग जो ऐसे मनभावना रखते हैं उस कुएं से बाहर आएं और देखें कि अलग संस्कृति में, अलग देशों में इन सारे चीजों को कैसे माना जाता है, और अगर आप देखेंगे तो हमारे बिल्कुल विपरीत में माना जाता है। Therefore, just you have if a little study of aesthetics, सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र के ऊपर अगर आपके थोड़ी सी भी ज्ञान है, then you will just come out of your bias about beauty. और आपके अंदर जो पहले से भर रखा है आपने, उस ज्ञान से आप बाहर आएंगे। Just to close the marketing of Fair and Lovely, you just need to go and visit the Africa. और आपको फेयर एंड लवली का जो क्रीम की जो कंपनी है उसको बंद करने के लिए आपको एक बार अफ्रीका देश विजिट करना पड़ेगा। And you will have a completely different definition of what beauty is. और आप जब फिर अफ्रीका विजिट करेंगे या मिलेंगे जाके अफ्रीकन लोगों से, आपकी जो सुंदरता की जो परिभाषा है उसको आप बदल देंगे। And if you want to have little bit of inferiority complex about the handsome and beautifulness with connected to the level of height, please go and visit China. Definitely it will change for you. और अगर आप ये सोचते हैं कि लंबाई से या नाटे से लोगों को सुंदर या सुंदर माना जाता है, तो कृपया करके आप चाइना देश में जाइए, तो आपकी परिभाषा बदल जाएगी। And you would not believe what sort of gadgets people have devised and used to expand their height. और बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, कुछ यंत्रों को इस्तेमाल करते हुए अपनी हाइट को बढ़ाने की कोशिश की है। And they have broken their knee, even back, and multiple organs or bones of their body in an attempt to get a length and height. और कई लोगों ने अपने घुटने और कमर और कई हड्डियों को तोड़ रखा है इस कोशिश में कि वो लंबे हो जाएं। And some people hanging, they have modified their body in a way that they have now become out of the anatomy of the proper structure of a human body. और कई लोगों ने लटक लटक के अपनी जो शरीर की जो असलियत है उसको उन्होंने बदल दिया है। What am I trying to say? मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूं? Everything that God has made cannot be defined by humans. परमेश्वर ने जो कोई भी चीज को बनाया है वो मनुष्य के द्वारा उसको बताया नहीं जाता। I cannot look at Hebron or Roshan or Salim or any of these students say they are handsome and they are not handsome. और मैं एक का नाम लेकर ये नहीं कह सकता कि ये सुंदर है और वो असुंदर है या नहीं सुंदर नहीं है। I can't look at any of the sisters and say they are someone is beautiful or someone is ugly. और मैं बहनों में से एक को उंगली दिखा के ये नहीं कह सकता कि ये बहन सुंदर है और वो बहन सुंदर नहीं है। You know why? जानते हैं क्यों? Because I am not the creator. क्योंकि मैं सृष्टिकर्ता नहीं हूं। Who knows the value of creation? कौन उस सृष्टि का मूल्य को जानता है? Other creation? क्या दूसरी सृष्टि? Or the people who are running the beauty contest? और जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट को चलाते हैं वो। And therefore, Plato, all of his life studied the concept of aesthetic and wrote lot of books and literature and ultimately concluded beauty is in the eyes of beholder. और जो प्लेटो है इसके ऊपर बहुत ही छानबीन करने के बाद वो एक कोटेशन कहता है कि जो सुंदरता है वो जो देखता है हमें उसके नजरों में होता है। Actually, he could not go beyond the physics to the realm of metaphysics and defy it to God or credit it to God, because it was just the beginning of the search for the ultimate reality. So he could not conclude that with God, but what he concluded is that the beauty actually lies in the eyes of the beholder. और ये फिजिक्स और मेटाफिजिक्स के ऊपर नहीं जा सकता, इसीलिए उसने परमेश्वर से सीमित नहीं किया या समाप्त नहीं किया, लेकिन उसने इस बात से समाप्त किया कि असली सुंदरता उसके नजरों में होता है जो हमें सुंदर पाता है या सुंदर देखता है। That is pretty subjective answer to the question. और जो सवाल हमने पूछा है उसका व्यक्तिपरक जवाब हो सकता है। But when you look at the objective understanding or the answer for the question, और असली जवाब को अगर आप खोजने की कोशिश करेंगे, it can only come from the one who has created it. और ये सुंदरता उसी के द्वारा आ सकता है जिसने हमें बनाया है। So what I want to tell you by all of this, because you may have heard lot of comments on how you look, how you walk, how you your personality is, and you are not up to the mark, you are not capable, you cannot do certain things. और ये कहना चाहता हूं इससे कि आपने अपने जीवन में बहुत सारी बातें आपके ऊपर कहते हुए सुना होगा कि आप सुंदर नहीं है, आप लंबे नहीं है, आप अच्छे नहीं दिखते हैं, आप ये बात करने के सक्षम नहीं है, और बहुत सारी चीजें आपने सुना होगा। Because that advertisement shows that this girl who is not fair enough holds her resume and tries to enter into an office to give interview, and then all of these people sitting there, they don't even look at her because she is not fair enough. और ये बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा कि एक लड़की
फेयर एंड लवली की एडवर्टाइजमेंट देखा होगा आपने, लड़की जो नौकरी करने के लिए जाती है और अपनी सीवी को लेकर या रेज्यूमे लेकर ऑफिस जाती है और वहां पे जितने लोग मौजूद होते हैं उस लड़की के तरफ देखना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि वो सुंदर नहीं है, And she fails the interview. और वो बाद में जाके इंटरव्यू में भी असफल हो जाती है। And after the huge success of this fair and lovely, they came up with something called fair and handsome. और बहुत ही बड़ी सफलता के बाद, जो फेयर एंड लवली की सफलता के बाद उन्होंने एक और नया क्रीम मतलब लागू कर दिया है या चालू कर दिया है, फेयर एंड हैंडसम। क्योंकि भाइयों को भी तो ग्रिप में लेना है ना, अब बहनों से तो बहुत कमा लिया, अब भाइयों को भी कैसे छोड़ेंगे, उनको तो पकड़ना ही पड़ेगा, तो उनके लिए बस नाम चेंज कर दो और डब्बा का कलर चेंज कर दो, गुलाबी से काला कर दो। You know what? Why am I saying all of this thing? There is a sense of inferiority complex within us, within all of us. और ये बात को मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि हमारे अंदर, हमारे दिमागों में ही हमें उच्च नीच करने का या अपने आप को तुलना करने का एक मन भावना है। But let me tell you, all of the people who have achieved great things in their life, either for God or even for themselves in their career, in their professional, are not bound by any of the criteria of aesthetics. और जो आप जैसे दिखते हैं उसके ऊपर आधारित ना होते हुए बहुत से ऐसे जो परमेश्वर के लिए सफल हुए हैं और जो अपने आप के लिए, अपने कामों में या अपने जीवन में जो सफल हुए हैं, वो इसके ऊपर आधारित नहीं थे कि वो कैसे दिखते हैं। It's all depends that how you look at yourself with an eyes of God or with the perspective of God, you would find yourself beautiful and handsome and perfect to achieve the goal or the mission oriented purposes that God has given to you. और ये उस बात पर निर्धारित होता है कि परमेश्वर आपको कैसे देखता है और आप अपने आप को कैसे देखते हैं, और ये जब आप देख लेते हैं तो परमेश्वर की असलियत को आप पहचानते हैं। Now, second idea in the same point I want to talk is that first I talk the beautiful of your personality or your individual character. Now, the second part of it I want to talk about that beautifulness of the events that are happening in your life. पहली बात हमने देखा है कि हमारी व्यक्तिगत जीवन में सुंदरता, या हम कैसे एक व्यक्ति होने के नाते परमेश्वर की सुंदरता प्रकाश करते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारी जो चारों ओर घटनाएं घटती हैं उसकी ओर सुंदरता। So nobody can define who you are except the one who has created you. और ये आपको कोई नहीं कह सकता है कि आप कैसे हो उसके सिवाय जिसने आपकी सृष्टि की Now, है। second thing, what is happening in your life is also cannot be defined by anybody outside except the Creator. और आपके जीवन में कौन से कार्य घटते हैं वो उसके अलावा जिसने आपके जीवन में वो कार्य करता है उसके अलावा उसको कोई भी समझा नहीं सकता, बता Keeping नहीं these सकता। both contrasting realities, events of life, Solomon is not threatening us. He is not scaring us to death. और ये दोनों बातों को तुलना करते हुए, दोनों विरोधाभास बातों को रखते हुए सोलोमन हमें डराने की कोशिश नहीं करता है। But he is trying to say that even there are sometimes negatives, there are tragedies, there are accidents, there are death, there are sorrow, there are pain. But remember, all of these things are beautiful when you look it from the end perspective. और सोलोमन कहता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे नकारात्मक चीजें हो सकती है, घटनाएं हो सकती है, संकट आ सकता है, लेकिन इन सारे चीजों के पश्चात ये सारी चीजें तब सुंदर लगेंगी जब आप परमेश्वर की नजरों से उस घटने को देखते हैं। And this leads us to point number 2. और ये जो है दूसरा विषय के ओर हमें ले चलता है। Please read the part B of that 11 verse. और उसका 11वां अध्याय उसका दूसरा भाग में देखते हैं। फिर उसने मनुष्यों के काम में मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। Man cannot understand what God is doing. परमेश्वर इस बात को समझ नहीं सकता कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहा है, Because it is unsearchable. क्योंकि ये खोज नहीं किया जा सकता। Man is unable to see the purpose. और परमेश्वर मनुष्य जो है उस उद्देश्य को नहीं देख पा रहा है। Even let's say after Christ has come, there are a lot of things that we put question that what is this, certain things are happening in my life. और कई बार देखिए कि मसीह आने के बाद भी हम कई बार सवाल उठाते हैं कि ये जो संभवित हो रहा है हमारे जीवन में, ये घटनाएं क्यों हो रहा है करके हम अपने आप से सवाल करते हैं। A lot of people can say that, oh, Solomon was before Christ and he didn't know about Jesus, so he didn't know about the purpose and plan of God. No, it is not like that. और कई लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आने से बहुत साल पहले सोलोमन जीवित था और सोलोमन जो है वो यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था। ये ऐसा नहीं है।
Even Paul says that I see certain things in mirror, not clearly, visibly, but one day will come, all of the realities of life, the plan of life will unfold before me. और पौलुस भी ये बात को हमारे सामने रखता है कि मैं अपने आईने के सामने कुछ चीजों को देखता हूं, लेकिन वो चीजें जो हैं वो धुंधला किया जाता है, लेकिन एक समय आने वाला है जब सारे चीजें स्पष्ट रूप में दिखाया जाएगा. So the first fact I told you that nobody can define who you are and what you are except your creator, and therefore you are beautiful and handsome and perfect because God has created you. Second, the things that are happening in your life is also beautiful when you look from the end perspective or God's perspective. And then this leads us to second thing, though we do not understand what are the things happening in our life, we need to rely and trust in God and continue to move forward. और पहली बात हमने देखा कि हमारे जीवन में जो सुंदरता है या हमारे जीवन में वही बता सकता है जिसने हमें बनाया है. इसीलिए हम सब परमेश्वर की नजरों में और अपने नजरों में उतना ही सुंदर है जितना परमेश्वर ने हमें बनाया. और दूसरी बात हमने देखा है कि जो घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं वो परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार घटती हैं और वो भी अपने समय में सुंदर हैं. And then we come to the third and the final point, which is also connected with the second one, that incomprehensibility means the ununderstanding way, or that the thing you cannot understand actually leads you towards God. और तीसरी मुद्दे पर जब हम जाते हैं जो वो दूसरे पॉइंट से भी दूसरे बिंदु से भी जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब ये है कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम समझ नहीं सकते या हमारे समझ से परे है, जो हमें परमेश्वर की ओर ले चलता है. Please read the verse number 14. देखिए 14 वचन अगर आप पढ़ेंगे, मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है. परमेश्वर ऐसा इसीलिए करता है कि लोग उसका भय माने. God does so that people could fear him. परमेश्वर ऐसा इसीलिए करता है कि लोग उसका भय माने. I wish I had some more time to stay on this point, but at least for the sake of the message, I want to say that there are a lot of things you don't understand that are happening in your life. The only goal that God has behind it, that you should, I should, and we all humans should come to God and fear him. काश मेरे पास थोड़ा समय और होता, लेकिन इस संदेश को आपके सामने रखने के लिए इस बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो कुछ हम नहीं समझते हैं, हमारे समझ से परे है, वो इसीलिए होता है कि हम सब परमेश्वर को और अच्छी तरह से जान सकें. Leave the metaphysics, let's just talk about the physics. The renowned scientists, those are in the top level, they say so far among all of the creation and cosmos, what we have come to know may hold for just 4%. और मान ले मेटाफिजिक्स को छोड़ दीजिए, मिनिमल अगर फिजिक्स के बारे में भी अगर आप देखेंगे, जितना खोजबीन भी हुआ है, वैज्ञानिक लोग ने जितना खोज किया है, उसके अनुसार देखा जाए तो सिर्फ हमने 4% ही जाना है असलियत को. There is 96% which is unfathomable for now. Maybe 10-20 years down the line they may know few more percent, but yet those things are unsearchable, unknown और to humankind. 96% अभी भी हमारे या इंसान के समझ से परे है. हो सकता है कि कुछ साल में वो और थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन अभी तक देखा जाए तो सिर्फ 4% या 96% अभी तक खोजा नहीं Now जाया. making it relevant, come to our lives. और आए हमारे जीवन में उसको लागू करें. Now there are a lot of things happening in your life you have no answer to. और कई घटनाएं हमारे जीवन में जो होती हैं उसका हमारे पास जवाब नहीं There are है. a lot of things happening to our nation we don't have answer to. और हमारे जो राज्य में, हमारे देश में बहुत सारे ऐसी चीजें होते हैं जिसका हमारा जवाब नहीं है. Let's what you have prayed last month may have happened quite opposite today. और आपने जो पिछले महीने प्रार्थना किया था उसका विपरीत में शायद आज की परिस्थिति हो सकता You may है. be asking God, why this has happened to me? और आप पूछ सकते हैं, प्रभु मेरे जीवन में ये क्यों हुआ है. When I came to Bible college, I thought the things would be very different. और जब मैं बाइबल कॉलेज में आया था या आई थी तो मैंने सोचा कि जो चीजें हो रही है उससे विपरीत में चीजें होंगी. I will eat good, I will live good, the studies will be easy, the environment will be very good. और मैं अच्छे से खाऊंगी, अच्छे से खाऊंगा, अच्छे से पढ़ूंगा और अच्छे से रहूंगा और परिस्थिति बहुत अच्छा होगा. And everything will be on my favor. और जो भी चीजें हो रही है वो मेरी अनुमति या मेरी इच्छा के अनुसार होगी. But what is this? लेकिन ये क्या है Where it is going? और ये किधर जा रहा है And what is the purpose of God in my life? और परमेश्वर का उद्देश्य मेरे जीवन में क्या है. And where is God leading me through all of this? और इन सारी चीजों के ऊपर परमेश्वर मुझे कहां लेकर जा रहे हैं. Uncertainties, unacceptabilities, unknown, unfathomable, unsearchable. और ये सारी चीजें हमारे समझ से परे हैं. But you know what? God tells you that what I have created has a purpose and is beautiful.
Maybe not understandable to you now, but in eternity, it makes sense. और आपको परमेश्वर ये कहना चाहता है कि जो कुछ भी मैंने बनाया है उसका एक उद्देश्य है। आप शायद अभी नहीं समझते हैं, लेकिन अनंत काल के जीवन में, अनंत काल में आप उसको समझ सकेंगे। And whether be it a creation or your life, और चाहे वो सृष्टि हो या आपका जीवन हो, what you are not able to understand और आप जो समझ नहीं पा रहे हैं, must lead you to God वो आपको परमेश्वर की ओर लेकर चलना with the चाहिए, fear and reverence. और परमेश्वर की आदर और परमेश्वर का भय के साथ। May the good Lord bless you all for giving your kind attention. I hope this will help us to grow in the Lord in the days to come. परमेश्वर आप सबको आशीष दें, और मैं आशा करता हूं ये सारी चीजें मिलकर हमें परमेश्वर के लिए बढ़ा सकें आगे। Thank you once again. Thank you to Reverend David also. थैंक यू।